Unacademy. Let's crack it. ईशान जी, अपनी लीगल जर्नी के बारे में बोर्ड को कुछ बताइए। Yes, sir. As you already know, my name is Ishan Jaiswal. I was born in Kanpur and did my schooling from there itself. And then I graduated from, then I did my BA LLB honors from West Bengal National University of Juridical Sciences, Kolkata. Uh, uh, since then, I also interested in the Supreme Court and with Supreme Court lawyer and uh, with Supreme Court lawyer and in sale also. Since then, I have been preparing for judicial. My Okay. my interest include following Olympic sports and especially hockey and listening to old Bollywood songs. I also love quizzing and have one conquest quiz. Was finalist for 2 times in conquest quiz on constitution, polity, and history. So you Okay. have worked, just a second, Madhu. So Yes, sir. You have worked with Supreme Court lawyer. You have done your internship under under the guidance of Supreme Court lawyer. So I done internship. At the Supreme Court. There is difference between working and internship. Yes, I meant to say internship. When you will be able to say that you have worked with senior on the Supreme Court lawyer, when you will be able to, what is that scenario in which you can use that statement? So firstly, I have to get enrollment in Bar Council of India. Then I No, only Bar Council of India enrollment will be sufficient. Or you need to crack any particular exam in order to work with the Supreme Court lawyer. so sir, I'm not. अगर आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ वर्क करना चाह रहे हैं तो आप कब कर पाएंगे, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सरल शब्दों में बताएं। सर मेरे हिसाब से वर्क करने के लिए अगर उनके अंडर में काम करना है, मतलब एज एन एसोसिएट you don't need to clear any exam if you want to work as a associate. मृदुल सर प्लीज। ओके। लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है? Sir, lawyer is the one who cleared the LLB exams, and advocate is one who is enrolled with the Bar Council. तो आपने सुप्रीम कोर्ट लॉयर के अंडर इंटर्नशिप करी या एडवोकेट के अंडर? So I interned under advocate on record. ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिमांड अंडर सीपीसी? So remand means that remand in CPC. या इन सीपीसी? Sorry, sir, I'm not. Okay. Whether court can convict an accused person on the basis of statements made by him under section 313 of CRPC. I'm not. Okay. यूपी में हाईकोर्ट जजेस की कितनी स्ट्रेंथ है?
So I think it's around 70 plus, but I don't know the exact. Okay. What do you understand by the term quasi-contract? So quasi-contract are those contracts that are not formed by the parties, but according to the provisions of law, these are given under 68 to 70 under Indian Contract Act. It includes contracts like if the contract is for a finder of goods, and contract for essential services of minor. सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लास्ट में कब अमेंडमेंट हुआ और उसमें क्या प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किए? The last amendment that I am aware of is about 2002. After that, I am not aware of the amendments. So I think लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन से साल में हुआ? So I think 2019 में CAA के बाद भी अमेंडमेंट हुआ. CAA Citizenship Amendment Act 2019 उसमें अमेंडमेंट हुआ था. क्या हुआ? सर जो भी हिंदू बुद्धिस्ट सिख जैन जो भी पीपल है वो अगर पाकिस्तान नेपाल एंड पाकिस्तान बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान से अगर भारत आए हैं तो 2016 या 17 के पहले उनको सिटीजनशिप दी जाएगी बाय द स्टेट अगर वो प्रोसिक्यूटेड थे. ओके, पहली बार किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है, उनका क्या नाम? सर ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस रंजन गोगोई. ओके, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि ए अपने लड़के बी के नाम से एक मकान खरीदता है और बी उस मकान को सी को बेच देता है. सी उस घर को प्राइस मूल्य देकर के खरीदता है. अब ए वाद लाता है उसके खिलाफ में, सी के खिलाफ में वाद लाता है, तो सी को क्या डिफेंस अवेलेबल है उसके अंदर? Sir, it relates with the transfer of property by ostensible owner. So C have the right if he has paid with consideration, if he has paid the clients and reasonable notice was there, basically he was not negligent, then he can claim under 41 that the contract is not voidable. Okay. What is the distinction between Union of India and Government of India? Union of India is given under article. Sorry, sir, I am not aware. कुछ गुंडे बल के द्वारा ए की दुकान को खाली करा देते हैं, तब ए के पास में क्या रेमेडी है? Sir, could you please repeat the question? Sir, could you please repeat the question? कुछ गुंडे बल के द्वारा ए की दुकान खाली करा करके उस पर कब्जा कर लेते हैं, अब ए के पास में क्या रेमेडी है? Sir, A has the remedy under Section 5 of the Special Relief Act. If he files the suit under within 12 months of the disposition, he can get the property back, his possession back. भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो उसके लिए उनके पास क्या रेमेडी है? तो सिविल रेमेडी होगी. क्रिमिनल ऑफेंस के लिए क्या रेमेडी होगी? अपराध किया ना उन्होंने तो. Then sir, चलिए एक आपको मैथमेटिकल इक्वेशन देता हूं, आप उसका आंसर बताएं, ठीक है? yes. सीआरपीसी सेक्शन 6 माइनस सीआरपीसी सेक्शन 26 इक्वल टू should I repeat? Yes, I understand. In 26. I just want the answer. I don't need explanation. Yes, sir. So I think JMFC, JMSC, and executive magistrate. Okay, thank you. We have done with your mock, and now it's time for your feedback. देखो ईशान जी, क्या आपके मन में किसी तरह की ऐसी कोई शंका है क्या कि मतलब आपके पास अगर कोई रिसोर्सेज कम ज्यादा है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू पे? ऐसी तो कोई शंका नहीं है ना आपके मन में? रखना भी मत, ठीक है? इंसान का जो नॉलेज है वही उसका सबसे बड़ा स्टेटस होता है किसी भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने, ठीक है?
सो मेरे अकॉर्डिंग जो है मेरे ख्याल से बोर्ड भी इस बात से एग्री करेगा कि कहीं कहीं एक कॉम्पिटेंसी का लेवल है आप में। जिस तरीके से आपने पिछले 20 मिनट तक अपनी प्रेजेंटेशन दी है, लॉ पर अपने कमांड को प्रेजेंट किया है, दैट्स रियली अप्रिशिएबल। और वो वाकई में एक जुडिशियल ऑफिसर के लिए एक रिक्वायरमेंट है जिसको आप फुलफिल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि पोटेंशियल नाम की अगर कोई चीज होती ना तो वो आपके अंदर है जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए। ओके, इस बात को लेकर खुद के प्रति कभी कोई संदेह या अंडर एस्टिमेट खुद को कभी मत करना, ठीक। लेकिन चूंकि हम सब लोग ह्यूमन बीइंग है तो कुछ न कुछ तो कमियां रखते ही रखते हैं। तो मैं ये चाहता हूं और मेरा सजेशन है कि जो मैं कमियां अभी आपको बता रहा हूं उस पर आप थोड़ा वर्कआउट करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी तक अपने इंट्रोडक्शन को नोट डाउन कहीं पे किया भी नहीं है। सर मैंने नोट डाउन किया था लेकिन मैंने जनरल इंट्रोडक्शन तैयार किया था, लेकिन सर ने लीगल जर्नी में पूछा तो देन आई हैव टू इंक्लूड द। तो उसमें करना क्या था, फिल्टर ही तो करना था सर। मैंने भाई उसमें से आप अपनी हॉबीज को हटा दो। आपने हॉबीज तो वैसे भी बताई, जब लीगल जर्नी की बात पूछी जा रही थी फिर आपने हॉबीज क्यों बताई जब आप सवाल को समझ गए थे? तो सर हाँ मतलब मैं समझ गया था, लेकिन क्योंकि मैंने लीगल तैयार नहीं किया था इसलिए मैं थोड़ा सा सकपका गया था और जल्दी से कोई बात इंटर्नशिप नहीं। लीगल जर्नी का मतलब हुआ आपका लीगल डेवलपमेंट टिल सो फार। LLB से लेकर आप तक यहाँ तक के सफर में आपने क्या क्या चीजें की, क्या क्या तैयार किया वगैरह वगैरह, है ना? वही चीज थी, बस उसमें से आपको अपने प्रश्न दूसरी चीजों को हटा देना था। अच्छा, अब क्या है कि वहां पे थोड़ा शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करना है। अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर वर्किंग विथ लिखा है तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के साथ आप तब तक वर्क नहीं कर सकते जब तक आप खुद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं होते। आप उनके जूनियर एसोसिएट कब बनोगे बताओ? सुप्रीम कोर्ट में आप जूनियर एसोसिएट कब बनोगे? जूनियर का मतलब क्या होता है कि भाई सीनियर की एब्सेंस में सीनियर अपने जूनियर को कोर्ट में भेज सके। तो जब आप ऑन एडवोकेट रिकॉर्ड ही नहीं हो तो क्या सीनियर आपको भेज भी सकेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, बेंच के सामने? पहला पॉइंट, ठीक है। आप बेसिकली वहां पे इंटर्नशिप करने गए थे और हकीकत भी यही है, आप गए तो इंटर्नशिप करने थे। तो इंटर्नशिप को आप एसोसिएशन के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। साथ में काम करने का मतलब ये हो गया कि आप उनके एसोसिएट पार्टनर थे या जो है उनके साथ में जुड़े हुए उनके जूनियर्स थे, है ना? तो ये इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा ये कि अब आप कब बनोगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड? जब आप 3 स्टेज पार करोगे। पहला, स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करना। दूसरा, AIB का एग्जाम क्रैक करना। और एलिजिबिलिटी हो जाए तब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एग्जाम को क्रैक करना। आज के समय में 3 रिक्वायरमेंट होती है ना, सुना है आपने AOR एग्जाम के बारे में? तो यस सर मैंने सुना है, लेकिन मुझे लगा कि सिर्फ एसोसिएट बनने के लिए नहीं करना। नहीं, एसोसिएट क्या होता है सबसे पहले तो उस चीज को आप समझने की कोशिश करना। जी अब मैं समझ गए ना? एसोसिएट कहने को मतलब जूनियर, लेकिन है तो सुप्रीम कोर्ट का वकील ना भैया। ओके, टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, दूसरा ये कि मतलब जहां पे कुछ बातें कॉन्सेप्चुअल, कुछ कॉमन टॉपिक के, वहां पर आप थोड़ा सा जो मात खा जाते हैं। मुझे ऐसा मैंने नोटिस किया। जैसे सर ने आपसे एक शब्द पूछा था रिमांड करके, है ना? यस। हालांकि मैं आपके अच्छे लिसनिंग पावर की भी तारीफ करता हूं कि आपने सुनते ही जस्ट खुद को संभाल लिया कि आप CPC में रिमांड का तो भाई कहाँ बताओगे। लेकिन आपने रिमांड का एक ही अर्थ समझ रखा है, इसलिए आप वहां पे रुक गए। आपने रिमांड का मतलब समझ रखा है कि जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी है। पुलिस कस्टडी को आप रिमांड कहते हो सामान्य भाषा में, तो आपने सोचा कि सिविल में तो पुलिस कस्टडी कहाँ आती है, यही हुआ। रिमांड का कोई प्रोविजन CPC में पढ़े, लेकिन देखो इन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि रिमांड ऑफ पर्सन, सिर्फ रिमांड बोला ना। तो रिमांड ऑफ केस भी तो होता है। हायर कोर्ट क्या वापस लोअर कोर्ट को केस रिमांड सेंड बैक नहीं कर सकता? yes. आप जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पावर्स पढ़ेंगे तो क्या वापस सेंड बैक मामला नहीं होता है क्या? रिवर्ट नहीं किया जाता है क्या केस को? लिटरल इंटरप्रिटेशन का लिंकिंग मिसिंग था यहाँ पे, ठीक है। आपने शब्दों को जो है ना सिर्फ एक नजरिए से पढ़ा, CRPC के नजरिए से पढ़ा, जबकि CPC CRPC तो दोनों भाई भाई हैं। आप इनको बिल्कुल अलग रख के चलोगे तो कैसे काम चलेगा? आपके तो नाम में भी सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है, आपके तो नाम में भी CPC CRPC साथ साथ चलती है। जब जज बनोगे तो पता चला 1:45 में आपने सिविल मामले को डील किया है
और 1:50 पे दूसरा वकील क्रिमिनल मामले को लेकर आ रहा है। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए दोनों चीजें पैरेलल आपको डील करना, खासकर जब टॉपिक कॉमन है तो वी शुड डू दैट। ओके, अब लास्ट में जो मैंने आपसे एक सवाल कोटेशन पूछा, सेक्शन 6 में से 26 को लेस करो। अरे भाई सीधा सा आंसर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन 26 क्या है? ट्रायल कोड। सेक्शन 6 क्या है? क्रिमिनल कोड। एकमात्र प्राणी जो क्रिमिनल कोड तो है लेकिन ट्रायल कोड नहीं हो सकता, वो कौन है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब ये आपने इस चीज को, या तो मुझे लगता है कभी इसको उस एंगल से ऑब्जर्व किया नहीं, इसलिए यहां पर आंसर देने में आप कंफ्यूज ही हो गए। कोई बात नहीं। सेक्शन 26 याद नहीं था, मुझे लगा ये वो वाला सेक्शन है कोर्ट ऑफ सेशन का, जुवेनाइल वाला। नहीं। अब मेरे को याद है। हाउ कैन यू मिस द ट्रायल कोर्ट लिस्ट? अरे भाई सीआरपीसी की तो आत्मा है ट्रायल। यस। और ट्रायल करने वाले कोर्ट को ही भूल जाओगे तो फिर उस कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर में जाने की बातें आप कर कैसे रहे हो? यहां तो आपके जो सपनों की डगर है वो आपके तैयारी की डगर से तो मैच ही नहीं कर रही फिर। ऐसे नहीं, हमेशा चीजों के अंदर कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग करना पड़ता है। समय के कंपटीशन के दौर को समझो। ओके, अकॉर्डिंग। अशोक सर प्लीज। यस, आपने सिटीजनशिप के जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। हमने जो प्रश्न पूछे उनके सभी 3-4 जो प्रश्न पूछे सारों का अच्छे आंसर दिए, और लास्ट में 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ उसको भी आपने रिकैप्चुलेट कर लिया, बहुत ही अच्छा किया। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो आपने बहुत ही अच्छी बताई, आपने कि जो ऑस्टेंसिबल ऑनर वाली बात बताई वो भी बहुत अच्छी बताई थी। और सांसद जिनको मिस्टर जस्टिस रंजन गोगोई वाला भी आंसर दिया। लेकिन हमने आपको 2 प्रश्न और पूछे थे, यूनियन ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर थोड़ा सा आपको करेक्ट करना था, लीगल एंटिटी शब्द यूज करना था। एक लीगल एंटिटी है, दूसरा लीगल एंटिटी नहीं है बस। और जो हमने आपको प्रॉब्लम पूछी कि कुछ गुंडे बल के द्वारा करते हैं, तो आप उसको सिविल साइड में ले गए। सिविल साइड में तो ठीक ले गए, लेकिन हमने जब पूछा क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो सीधी सी बात है एफआईआर दर्ज करानी है 447, 506 आईपीसी के अंदर, और कब्जा लेना है वापस, उनको जेल में डलवाना है। वो भी एक स्पीडी रेमेडी है ना। अब सिविल रेमेडी तो बड़ी धीरे धीरे चलेगी, आगे सिविल रेमेडी जिस किसी मामले में दोनों प्रकार की रेमेडी अवेलेबल है, आप दोनों अवेल कर सकते हो, है ना। तो आपको क्रिमिनल साइड के स्पेसिफिक पूछ रहे हैं तो आपको वो भी बतानी थी आपको। बाकी आपका कंसेप्चुअल, यू आर वेरी साउंड, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। यस मनीष जी, मृदुल जी। जी ईशान जी, आपकी लीगल नॉलेज बहुत ही अच्छी है। बस आप थोड़ा सा ये कोशिश करिए कि लॉस को लिंक करने की आप कोशिश करिए। जैसे तनसुख सर बताते हैं, लिंकिंग ऐप आप डाउनलोड करिए, उसमें लिंकिंग चार्ट्स अवेलेबल है। वो चार्ट्स को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा दोनों लॉस के बीच में क्या लिंकिंग है। वो आप ट्राई करिए बस। ईशान जी, बस लास्ट में एक ही लाइन आपसे कह रहा हूं मैं। भगवान कृष्ण के टाइम में 2 शब्द थे, एक तो थी गाय और दूसरा था ग्वाला। ठीक है, जो न्यायिक सिस्टम है वो गाय की तरह है। अगर अच्छा ग्वाला नहीं मिला ना तो वो गाय जो है वो जंगल की तरह जा सकती है, जहां पर जंगली भेड़िया उनका शिकार कर सकता है। और आप जो है उसी तरह से एक ग्वाले की भूमिका निभाने में सक्षम है। ओके, यानी कि आपके अंदर जुडिशरी का पोटेंशियल है। बस थोड़ा सा चीजों को हम मैनेज करें, फिगर आउट करें, इम्प्रूव करें। कॉन्सेप्ट लिंकिंग एक मेथड है जिसके माध्यम से हम अलग अलग चीजों को एक साथ समझ सकते हैं। मतलब सेम मेहनत से मल्टीपल आउटपुट निकाले जा सकता है। उस पर वर्क कीजिए। बाकी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जुडिशरी के मुकाम को आप हासिल जरूर करें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।